आप लोगों का। खाना खा कर के जाइए। खाना है ये फिक्स इंग्लिश होगा, आप बताएं सर। नहीं बताएंगे। otherwise called IUML, having 5 MPs in the parliament. Once in 4 years, we enroll membership in all the state committees will be reorganized. Similarly, now throughout India, we are completing the work of enrollment of membership, and we are establishing every state elections conducting every state. In that regard, we came to Bihar today. We have established IUML in 19 districts. Out of 38 districts in Bihar, we have our party well established in 19 districts. And the 19 district committee members forming the state general council meet today, and they have chosen for the future 4 years the 21 committee office bearers. Naeem Akhtar, our president, existing president, is again unanimously chosen as the president for future 4 years. Similarly, Munawar Alam, General Secretary, has been chosen as the Bihar State Muslim League for 4 years. Similarly, and what is his name is not able to come. He is bedridden. Therefore, your treasurer Aqeed Ahmad has been chosen as the treasurer of IUML, and along with these 3 people, we have chosen 17 more others, vice president and joint secretaries and organizing secretaries. Like this, 21 members of the state committee has been chosen in this meeting. That is the purpose of today's meeting. सर गिरिराज सिंह सटायरी स्पेशल कम्युनिटी जो कटेंगे वो बटेंगे। What's your opinion? जो बटेंगे वो बटेंगे। हिंदी में इसका बयान दीजिए। ठीक है। ओके सर। बटेंगे तो कटेंगे। जो बटेंगे वो कटेंगे। Oh yes. Those who are not able to unite will get perished. That's what they will want to say. That Muslim community in India, 25 crores of all the minority communities in the world, Muslim communities numbering 25 crores in this country is the major minority community. Of all the states in the United Nations, 193 states, 57 states are Muslim states. 72 states are having Muslim minorities. Of all the 72 minority Muslim states, the biggest Muslim minority is found only in India. Therefore, in India politics, we follow Islamic religion, matter of religion, and as also we follow Indian constitution in every inch. Therefore, we Muslims of India, following not only Quran, Hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we also follow the Indian constitution
which is secular, which is common and useful for every community in this country. Therefore, here, but therefore, we don't unite, it will be destroyed. That is only a slogan, but it cannot happen anywhere in India, because nobody can destroy any community on earth. One thing I would like to tell you, brothers, as Anthropological Survey of India, headed in Calicut, Calcutta, has conducted the Anthropological Survey of communities in India. They have published 45 volumes. In the 45 volumes, what they say is, India, we Indians are divided into 4,698 communities. 4,698 communities we are throughout scattered in the country. Therefore, no community can be made to rise against another community and thereby destroy any other community. Therefore, our beauty, land of our beauty of our land is this garden of Hindustan. This country is known for the pride of unity and diversity. Our country is known for unity and diversity. And unity and diversity is the pride of our country. Therefore, we say, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. We not for sake, poets sake. It is a belief. We believe so. Therefore, in this country, the country of diversity, pluralism, nobody can think of destroying another community. And all communities in this country will live like brothers and sisters. That is the tradition. That is the history that will be continued. So yourself, Pardon? हिंदी इंडियन लैंग्वेज में बात करने बोल रहे I will introduce. Yes. These are National President of Indian Union Muslim League, Professor K.M. Qadar Mohiuddin, ex-member of Parliament. कुछ कहना चाहेंगे बेसिकली मैं जो सर ने कहा उसका ट्रांसलेट कर देता हूँ. हमारी आज की मीटिंग यहाँ पर हमारी आज की मीटिंग बिहार में नई स्टेट कमेटी का चुनाव के लिए स्टेट जनरल काउंसिल की मीटिंग थी. उसके लिए हम यहाँ आज हाजिर हुए हैं आपके स्टेट में. और 19 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कमेटीज़ हैं मौजूद, उन लोगों ने आज एक नई कमेटी यहाँ चुनी, जिसके प्रेसिडेंट जनाब नईम अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं मेरे राइट में. मेरे लेफ्ट में उसके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुनव्वर आलम साहब मौजूद हैं. और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं कमेटी के, वो आज यहाँ मौजूद रहे और ये नई कमेटी आज चुनी. ये मकसद था आज की कमेटी. चुनाव के लेकर भी कोई बातचीत हुई है? कितने सीटों पर आने वाले 2025 चुनाव का टाइम, अब ये नई कमेटी आई है, ये अपना सर्वे करेगी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में. जहाँ जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहाँ से चुनाव हम लड़ेंगे. अभी इसके बारे में कुछ कहना, कुछ योजना योजना हमेशा रहती है, पैटर्न हमेशा रहता है, मगर जब एक्चुअली जब चुनाव शुरू होंगे उस वक्त तक फाइनल. अकेले लड़ेंगे या कुछ फैसला हुआ है कि हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस का हिस्सा है. हम लोग मिलकर लौटते रहे हैं अब तक. हमारी कोशिश यही होगी कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा रहें. नहीं होगा तो फिर अकेले लड़ेंगे. पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने मिलकर लड़ा. शुक्र है कि ये जिम्मेदारी में दोबारा मिली है. कई साल से हम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. आज एक नई रूह पैदा किया है आपने, हमारे ऑल इंडिया सदर जनाब कादिर मोहिउद्दीन साहब हैं और कमी सेक्रेटरी और उमर साहब. जिम्मेदारी की बात यह है कि सब हम लोग काम के फील्ड में कर रहे हैं. अब जो अभी आपने एक सवाल कर दिया था इलेक्शन का,
और उसका जवाब भी उन्होंने दिया। तो हम अपना सर्वे करेंगे, अपने जहाँ जहाँ हमारी टीम मजबूत है वहाँ हम लोग आकर के करेंगे। और इलेक्शन लड़ा तो हम लोग लड़ते हैं, इससे पहले भी इलेक्शन पार्लियामेंट लड़ा है। 1,20,000 वोट भी हमने लाया है झारखंड बनने से पहले पाकुड़ से, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से 1,20,000। उसके बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन होता रहा है तो उसमें हम लोगों ने कभी बहादुरगंज से, कभी किशनगंज से, इस तरह से हम लोग किया है। लेकिन अब हमें एक नई ताकत मिली है, इंडिया अलायंस में हम हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साहब ये टिकट कहता है हमें टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। और फिर आवाम के बीच में जो काम हम लोग जो चाहते हैं नहीं कर पाए उसको हम ज़्यादा करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई, किस तरह से इसका प्रबंधन करेंगे आप? मैं मनोहर आलम किशनगंज। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है बखूबी उसको निभाने का 100% कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जिम्मेदारी आपको मिली है, इसके बाद आगे में चुनाव भी आने वाला है, इसको लेकर भी क्या कुछ आप लोग के दिमाग में चल रहा है? देखिए, हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने आप लोगों को पहले बताया कि ये इलेक्शन आएगा तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन में है। अगर इंडिया गठबंधन में बात बनी तो ठीक, नहीं तो हम लोग अगले अपने से भी इलेक्शन लड़ने का क्षमता रखते हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे। कितना सीटों पे लड़ेंगे सर? सीमांचल में तो सारे सीटों में लड़ेंगे, अगर अपने से अकेला लड़ेंगे तो। कितना सीट आने का चांस है? वो देखेंगे, हार जीत अलग बात है। लेकिन कोशिश अगर करेंगे मौका हम। मिला तो गठबंधन करेंगे। हाँ, गठबंधन में है, गठबंधन में रहेंगे। तो आज कैसा लग रहा है सर, इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है आपको? खुशी, जाहिर सी बात है, डबल खुशी है सर। डबल खुशी मिली है। अच्छा, आज इस अवसर पे इस मंच से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने यूनियन में समाज जितने के भी लोग लोग हैं? अपने समाज के लोग जिस को हम लीग लोग में यही जितने भी कहेंगे लोग कि सारे लोग दिल से और मन से काम करें और लोगों के बीच जाएं, अपनी बात रखें कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है और क्या करना चाहती है, क्या करेंगे। ठीक है सर। परिचय दे दीजिए। मनोहर दे आलम, दिए हैं। जनरल आपको सर कोई पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है सर, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा, इसलिए कि इस पार्टी से हम बहुत दिन से हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ करके 3 लोकसभा सीट हम लोग जीते भी हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग सीमांचल में मेहनत कर रहे हैं कि सीमांचल में मेहनत करते हैं कि सीमांचल के अंदर हम लोग डिमांड रखे हैं, लिख करके भी दिए अपने लेटर पेड में कि सीमांचल के अंदर सभी सीटों में अगर सिंगल पार्टी चुनाव लड़ता है तो सभी सीटों में लड़ना है। अगर पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल का अधिक से अधिक सीट हम लोग को मिले चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, गिरिराज सिंह को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह का उनकी जो बातें भी सामने करते ये देखिए, गिरिराज सिंह आपको पता ही है, वहाँ बिहार में गिरिराज सिंह और यूपी में आपका योगी और उधर हमारा देश का जो गृह मंत्री अमित शाह हमेशा लोगों के बीच में जो अजब तरीका का बात फैलाते हैं वो सरासर गलत है। ये जैसे गिरिराज सिंह अपना स्वाभिमान यात्रा को लेकर के सीमांचल पहुंचे थे, वहाँ भी भरपूर विरोध किया, हिंदू मुस्लिम दलित सब कोई मिल करके उसका भरपूर विरोध किया। जो कि वहाँ का एक सांसद है अररिया का प्रदीप सिंह, उसके भी विरोध में रोड में आदमी उतर गया, इसलिए कि वो बेतुका बयान ऐसा दिया कि यहाँ अगर रहना है अररिया में तो सबको हिंदू बन करके रहना है। उसको यही नहीं पता है कि वहाँ का मुस्लिम ने उसको वोट दे करके 1 बार नहीं 2 बार सांसद बनाया। उसका जुबान से ये बात कैसे निकल गया हम लोग को भी समझ में नहीं आता है। हम सभी मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि मीडिया भी उससे सवाल करे कि अपना वो सफाई में देता है कि नहीं, बोल रहे थे कुछ और मेरा बात कुछ और निकल गया। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है मुख्तार आलम, जॉइंट सेक्रेटरी बिहार। बहुत